Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So, welcome again in the new session, and this is your new session for class 2 subject English grammar. Today I am going to take grammar topic, and earlier we have done the literature part. So, this is lesson 9 action words, which is your first lesson of term 2. lesson 9 जो है आपके term 2 का lesson 1 है, till lesson 8 आपका term 1 है. So this is your lecture 1 regarding action words, and in this lesson we will discuss about the action words. So this is your lesson 9 from P.C. Rand's grammar book. So before starting the lesson, I am going to ask you regarding the test. I hope all of you have done good work and scored good marks. So clap for yourself for the test. Now let's begin our work. So the contents regarding the action words we are going to discuss are, first I will tell you what are action words. Action words क्या होते हैं? Action words are the words from which we came to know that something is done by the subject. They are also called doing words and verbs. Action words को हम doing words और verbs भी कहते हैं. Action words वो words होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं, और ये करता कौन है? Subject. Suppose if you are doing something, then it is subject. आप कौन हो गए? सब्जेक्ट. और जो आपने काम किया वो क्या हो गया? एक्शन वर्ड, और यू कैन से डूइंग वर्ड, और यू कैन से वर्ब. वो जो आपने काम किया वो वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, या डूइंग वर्ड हो गया. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. लेट्स प्रोसीड. नाउ लेट मी शो यू some pictures, and these are the pictures which are given in your book. Look at the pictures and read. आपको ये pictures देखनी है और पढ़ना है. These the pictures show some action. ये pictures क्या show कर रही हैं? कुछ action. यानी कि जो इस picture में girl, boy ये जो भी हैं, they are doing some work. वो कुछ काम कर रहे हैं. So first is eats, second drinks, third sells. आप क्या देख रहे हैं? One shopkeeper is selling something to a boy. So they are doing something. Eating, drinking, selling. These words are called action words. यानी कि हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं? क्रिया. कि कुछ कार्य हो रहा है. क्रिया. Now few more pictures are there. Cries, runs, barks. So आप ये पिक्चर देख के ही कह सकते हैं कि the child is crying, the rabbit run or running, the dog barks. So these are also doing some action. ये सब भी कोई एक्शन कर रहे हैं, और ये वर्ड्स भी क्या हैं? एक्शन वर्ड्स. जिन भी वर्ड्स से आपको कुछ काम करने का बोध होता है वो सब क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स. और वी कैन से डूइंग वर्ड्स, और वी कैन से वर्ब्स. नाउ फ्यू मोर वर्ड्स. राइजेस. आप बहुत बार सेंटेंस बनाते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ उगता है? ईस्ट में. फ्लाइज. द बर्ड फ्लाइज. पक्षी क्या करता है? उड़ता है. उड़ना, उगना, खाना, ये सब क्या है?
action words. So I hope you understand. Now let's discuss the first exercise which is given in your book. Fill in the blanks choosing words from the box given below. Here are the few words. बच्चे जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स. और हमें ये एक्शन वर्ड्स इन गिवन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेट्स, छिपना, क्रॉल्स, चलना, गुड़हलियाँ जो बच्चे चलते हैं, सेल्स, तैरना, सेल्स, बेचना, बाक्स, भोंकना, फ्लाइज, उड़ना, हॉप्स, कूदना, रॉर्स, दहाड़ना, सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं. और हमें ये एक्शन वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग फिल करने हैं. द सन सेट्स. सन क्या करता है? छिपता है. द बर्ड फ्लाइज. द रैबिट हॉप्स. द बुक सेलर सेल्स. द शिप sails. The lion roars. The baby cries. Sorry, over here cries नहीं दिया हुआ है, crawls. The baby crawls. ये देखिए ये crawl कर रहा है, गुडलियाँ चल रहा है. जो बच्चा पैदल चलना नहीं सीखता है वो घुटनों पर चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? crawl. The dog barks. So in this way you have to do the exercise. Let me show you the solved exercise. Now in the exercise 1, fill in the blanks using action words. I have shown you the page which is given in your book, and here in this slide the solved exercise is shown. Exercise 1, fill in the blanks using action words. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कुछ आपको कार्य करता हुआ नज़र आता है तो वो जो कार्य किया है वो क्या है? वर्ब. और जो कार्य जिसने किया है वो क्या है? सब्जेक्ट. वो क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसने किया. द सन सेट्स. सन सूर्य छिपता है. तो सेट्स क्या है? वर्ब और एक्शन वर्ड. द बर्ड्स फ्लाइज. फ्लाइज मतलब उड़ना. कौन उड़ता है? बर्ड्स. और बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट. द रैबिट हॉप्स. रैबिट कूदता है, फुदकता है. जैसे फुदकता हुआ चलता है रैबिट. वन छलांग लगा के जो आप बोलते हैं, दैट इज होपिंग. सो रैबिट क्या होता है? रैबिट खरगोश. खरगोश क्या करता है? हॉप्स फुदकता है. द बुक सेलर सेल्स. और बुक सेलर क्या करता है? सेल करता है, बेचता है. क्या बेचता है बुक सेलर? बुक्स. द शिप सेल्स. और जहाज क्या करता है? तैरता है. सो द अंडरलाइन वर्ड्स ओवर हियर यू हैव टू फिल इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे. एंड दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स. Now F part. The lion roars. Lion क्या करता है? roar करता है, दहाड़ता है. So roars क्या है? action word. The baby crawls. Baby जो बच्चा है वो घुटनों पर चलता है. घुटनों पर चलना मैंने आपको पहले भी बताया, crawling. So crawl क्या है यहाँ? action word. The dog barks. डॉग क्या करता है? भौंकता है. तो भौंकना क्या है? एक्शन वर्ड्स. नाउ एक्सरसाइज 2, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. सो ड्रिंक क्या है यहाँ? एक्शन वर्ड. सो दिस इज द पेज विच इज़ गिवन इन योर बुक. दिस इज पेज नंबर 47 and I am going to solve this exercise and डिस्कस दिस एक्सरसाइज विद यू. मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रही हूँ और ये एक्सरसाइज आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगी. सो लेट्स प्रोसीड
to solve the exercise. So exercise 2, underline the action words in the following sentences. I drink milk every day. मैं रोज दूध पीता हूँ. So drink यानी कि पीना क्या हुआ? Action words. My sister likes to read comics. मेरी सिस्टर को क्या पसंद है? कॉमिक्स पढ़ना. सो रीड करना क्या है? एक्शन वर्ड. सो रीड इज एक्शन वर्ड ओवर हियर. माई अंकल लिव्स इन दिल्ली. मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? दिल्ली में. सो लीव्स क्या है? लीव्स? रहना. और ये एक्शन वर्ड्स है. यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वे यू फॉर्म द सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक द सेंटेंस. माई मदर वर्क्स इन बैंक. मेरी मदर कहाँ काम करती है? बैंक में. वर्क्स क्या होता है? काम करना. सो वर्क्स इज ऑल्सो एक्शन वर्ड. शीप ईट्स लीव्स एंड ग्रास. शीप क्या खाती है? शीप? लीव्स एंड ग्रास, पत्ते और घास. सो ईट्स क्या है? एक्शन वर्ड. शीप सब्जेक्ट. Leaves and grass is object over here. I hope you understand. Now the next sentence, the farmers grows crops. Farmer क्या करते हैं? Crops क्या होती हैं? फसल. और farmer किसान. किसान फसल उगाते हैं. So काम क्या किया उन्होंने? फसल को उगाना. So उगाना क्या है? Verb. So I hope you understand कि जो भी आप काम करेंगे, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, ड्राइविंग, जो भी आपने काम किया वो एक्शन वर्ड है, वर्ब है. जिसने किया वो सब्जेक्ट है, और जिसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ verbs in the sentence, how you can fill or how you can underline the action words in the given sentences. Now the next sentence, I play badminton every morning. मैं हर सुबह बैडमिंटन खेलता हूँ. सो खेलना क्या हुआ? एक्शन वर्ड, and it is verb over here. The hen lays egg. मुर्गी क्या देती है? अंडे. So देना क्या हुआ? Action word. Lays. Lays is action word. So we will underline lays over here. Hen subject and eggs is object. In this manner you are able to make the sentence, or you can underline the verb, or you can fill up the words over here. Now again I recall that action words are those words which shows what the subject do. Action word कौन से word होते हैं? जिनसे हमें ये पता चलता है कि subject क्या कर रहा है. So these words are called action words. जो कुछ भी सब्जेक्ट ने किया वो क्या है? वर्ब है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या है? वर्ब है. बेसिकली आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब ही आता है. आई प्ले, आई ईट, आई ड्रिंक, आई स्लीप. सो आई के बाद जितने भी वर्ड्स आए सब एक्शन वर्ड्स, एंड आई इज सब्जेक्ट ओवर हियर. आई होप you understand this.
Now, homework time. As you very well know, after explaining the thing, we give homework to you. And the homework for you is frame sentences using doing words which you use in school. At least 10 sentences you have to make. फ्रेम मीन्स आपको सेंटेंस बनाने हैं और कौन से वर्ड्स यूज़ कर कर, डूइंग वर्ड्स यूज़ कर कर, यानी कि वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स को यूज़ कर कर आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस इन द नोटबुक. आपको ये सेंटेंसेस कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में. नाउ वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू. प्ले. एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ. प्ले. एंड प्ले मीन्स खेलना. आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड. मैं प्ले ग्राउंड में खेलता हूँ. सो प्ले क्या हो गया? एक्शन वर्ड. एंड आई क्या है? सब्जेक्ट. एंड इन द प्ले ग्राउंड इज ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. इन दिस वे यू हैव टू मेक द सेंटेंस. नाउ यू हैव टू फ्रेम 10 सेंटेंसेस. और वो वर्ड्स कौन से होने चाहिए जिनके आपको सेंटेंस बनाने हैं? डूइंग वर्ड्स. फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको सेंटेंस बनाने हैं डूइंग वर्ड्स के. और आपको कौन से डूइंग वर्ड्स लेने हैं? जो आप स्कूल में यूज़ करते हैं. लाइक स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं, यानी कि जो आप करते हैं वो क्या हैं? एक्शन वर्ड्स. प्ले आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ईट, ड्रिंक. और क्या करते हैं? यू राइट, यू रीड, ओके, यू डांस, यू सिंग. All these are action words which you used in the school. And with the help of these action words, you have to frame sentences. आपको sentence बनाने हैं. Now, in the end, I would like to say that please send homework on mails. आप अपना homework mails पर ही send करें so that we are able to make your records. And first go through the lectures. बच्चे पहले आप lectures देखें which are available on EDQUAC website, जो EDQUAC website पे available होते हैं. Because after watching the lecture watch करने के बाद ही आपको lesson समझ में आएगा. Help your parents in it. आप अपने पेरेंट्स की बात मानिए और ये वर्क करिए. बिकॉज इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट. ये आपके बेनिफिट के लिए है. लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन EDQUAC वेबसाइट, EDQUAC यूट्यूब चैनल. एंड ऑन EDQUAC वेबसाइट योर होमवर्क इज़ देयर, योर होमवर्क सोल्यूशन इज़ देयर. सो प्लीज़ गो थ्रू इट. सब्सक्राइब EDQUAC चैनल. EDQUAC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप जो हैं जैसे ही कोई न्यू लेक्चर अपलोड होता है यू आर एबल टू वॉच दैट लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड लेट मी टेल यू, दीज आर एक्शन वर्ड्स. अगर आप इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे तो दीज आर वेरी ईजी वर्ड्स टू अंडरस्टैंड. अगर डेली लाइफ से आप इसको रिलेट करेंगे तो ये वर्ड्स बहुत ही ईजी हैं. सपोज़ आप जब खाते हो तो आप बोल सकते हो कि मम्मा दिस इज़ एक्शन वर्ड. व्हेन यू प्ले यू कैन से दिस इज़ एक्शन वर्ड. व्हेन यू आर वॉचिंग टीवी देन इट इज़ ऑल्सो एक्शन वर्ड. सो रिलेट द थिंग्स टू योर डे टू डे लाइफ. जैसे ही आप अपनी स्टडी को डेली रूटीन वर्क से रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे इट विल बी ईजी टू यू. सो प्लीज़ रिलेट इट and do the work in a very proper manner. Thank you. Have a good day. I hope you understand this lesson
which is action words. Keep on doing the actions. एक्शंस करेंगे तो आपको एक्शंस समझ में भी आएगा कि एक्शन वर्ड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब्स. ओके, सी यू अगेन. बाय. I will meet you soon. Okay.